چیز کی کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں. بہت ساری برف پڑتی ہے، انسان کی عزت کی جاتی ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. میں سراج بات کر رہی ہوں. دیکھیں، یہ تو آپ میرے سے ایگری کریں گے کہ ہر جگہ کے کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں. کچھ پروز ہوتے ہیں، کچھ کونس ہوتے ہیں. میرے سے کسی نے سوال کیا کہ کیا کینیڈا میں رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے، کینیڈا میں رہنا اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ میں ویڈیو بنا لوں تاکہ وہ سب کے لیے ہو، سب کو فائدہ پہنچے، سب کو پتہ چلے کہ کیا کینیڈا میں رہنا چاہیے یا رہنا نہیں چاہیے. مجھے یاد ہے ہم لوگ مری میں گئے تھے گھومنے کے لیے. اس کو کافی سال ہو گئے میرے خیال میں، اگر میں بھولتی نہیں ہوں، میرے بچے چھوٹے تھے، بہت چھوٹے تھے، تو شاید 20 ایئرس پہلے ہم لوگ گئے تھے. اتنا پانی ٹھنڈا تھا، اتنا ٹھنڈا پانی تھا اور اتنی ٹھنڈک تھی، ہم لوگ پوری رات کو سو نہیں سکے. اور پھر واش روم میں گئے تو پانی جمع ہوا. واش روم میں پانی کیسے یوز کریں، نہانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوا، سمجھے نا. تو پھر یہاں پر ایسی بات نہیں ہے. یہاں پر آپ کو جب بھی آپ جائیں گے آپ کو پانی واش روم میں گرم ملے گا. باتھ روم میں نہانے کے لیے 24 گھنٹے پانی آپ کو گرم ملے گا. تو یہ سب سہولتیں ہیں یہاں پہ. دیکھیں، میں جو بھی ویڈیو بناتی ہوں یا جو بھی میں یہاں پر شیئر کرتی ہوں تو میری پرسنل جو ہوتی ہے، جو میں نے دیکھا ہے، اپنے 18-19 سال کا تجربہ ہے میرا، جو ہم لوگ کینیڈا میں رہے ہیں. پھر ہمارے رشتہ دار بھی رہتے ہیں، اور میں کیونکہ بہت کمیونٹی میں انوالو ہوں، تو یہاں پر ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں. کچھ کینیڈا کی پازیٹیو چیزیں بھی دیکھی ہیں، اور کچھ کیا بہت ساری، اور کچھ نگیٹیو بھی دیکھی ہیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے بھی آ کے یہاں پر اسٹرگل کیا. 2 سال 3 سال ہم نے تو پھر بھی اتنا نہیں کیا، تقریباً 1.5 سال ہمیں لگا، کیونکہ 9 مہینے ہم لوگ ٹورنٹو میں تھے، 9 سے 10 مہینے. تو وہاں پر تو بالکل بھی سیٹل نہیں ہوئے، بالکل بھی نہیں. یعنی کہ وہاں الٹا ہم نے جو پاکستان کی ہم جمع پونجی لے کے آئے تھے وہ ہماری ختم ہو گئی، بالکل بھی سیٹل نہیں ہوئے. ٹھیک ہے نا. اور پھر کسی نے کہا کہ البرٹا بہت بومنگ ہے، ایڈمنٹن بہت اچھا جا رہا ہے. کیلگری بھی اچھا تھا، ایڈمنٹن بھی اچھا تھا. لیکن کیونکہ ہمارے تو کچھ جاننے والے تھے ایڈمنٹن میں، دور کے رشتہ دار، تو انہوں نے ہمیں بلایا. 3 سے 4 مہینے اپنے گھر پہ رکھا. بہت ہی بڑی بات ہے. اس انکل کی ابھی لاسٹ مہینے میں اس کی وہ وفات پا گئے. اتنے اچھے نیک انسان تھے. تو بہرحال تو اس لیے پھر ہم لوگ یہاں پر ایڈمنٹن موو ہو گئے. تو اسٹرگل کی، لیکن وہ جو ہم نے 1.5 سال اسٹرگل کی، لیکن پھر اس کا بھی ہمیں جو ہے وہ اس کا اجر مل رہا ہے، ہمیں اس کا بھی فائدہ مل رہا ہے. ہمارے بچے اچھی اسکول میں جا رہے ہیں، میرے گرینڈ کڈس ہیں وہ اچھی اسکول میں جا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں نے کافی میری اپنی نظر سے بھی کافی ویڈیوز گزری ہیں. فیس بک پہ بھی میں دیکھتی ہوں کہ کچھ لوگ شیئر کرتی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ کینیڈا چھوڑ کر جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بھئی یہاں کے ٹیکسز بہت ہائی ہیں، یہاں کا ویدر بہت ایکسٹریم ہے، اور یہاں پر بہت زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے. دن بہ دن ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے. بس ابھی ہمارا بھی ٹھنڈک شروع ہو گئی ہے تھوڑی تھوڑی، کہ اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہے، لیکن ٹھنڈک تھوڑی تھوڑی شروع ہو گئی ہے. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے آگے. حالانکہ جب یہ دیکھا جائے تو جب کووڈ تھا تو لاکھوں، پتہ نہیں کتنے لاکھ جو لوگ ہیں وہ ویٹ کر رہے تھے کہ کووڈ کا یہ ختم ہو، سب کچھ پرابلم جو آ رہا تھا کووڈ کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے تو ہماری ویزا لگے تو ہم کینیڈا جائیں. پھر دوسری طرف ہم ویڈیو میں دیکھتے ہیں، لوگوں کے منہ سے دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک دوسرے سے سنتے ہیں یا پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ بھئی لوگ جو ہے وہ کینیڈا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں. واقعی لوگ کینیڈا چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا یہاں رہنا صحیح نہیں ہے؟ تو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں آج. تو ہم سب سے پہلے یہاں پر بات کریں گے ٹیکسز کی، کہ کیا آپ کا ٹیکس یہاں پر بہت زیادہ ہے. نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ٹیکس کٹتا ہے، کافی آپ کا ٹیکس جو ہے وہ کٹ جاتا ہے آپ کی پے میں سے. جو ٹیکس کٹتا ہے اس کے اندر آپ کا CPP پلان بھی ہوتا ہے، کہ آپ جب ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کا پلان ہوتا ہے اس کے اندر، اس کے لیے پیسے کٹتے ہیں. اور پھر اگر دیکھا جائے تو ظاہری بات ہے مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، انفلیمیشن بڑھ رہی ہے یہاں پر، وہ تو حقیقت ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن اس کے نسبت اگر ہم بات کریں
जब आए तो मैंने टिम हॉर्टन में भी काम किया, नाइट शिफ्ट भी की, जैसा कि मैंने पहले शेयर किया था। मेरे हस्बैंड सुबह सुबह 4 बजे जाते थे और फिर 10 बजे आते थे, फिर शाम को जाते थे, फिर रात को 10 बजे आते थे। वो मिला के हमारा टोरंटो का रेंट भी नहीं निकलता था। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। शुरू में सबको ये स्ट्रगल करनी पड़ती है, सबको मेहनत करनी पड़ती है। ये मुझे याद है, ये तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है। मेरे हस्बैंड स्नो में जा रहे थे तो पैर स्लिप हो गया, तो गिर गए, तो उनकी यहाँ पर फ्रैक्चर हो गया, यहाँ पर फ्रैक्चर हो गया। तो जब हम हॉस्पिटल में गए तो उनको पेन तो अच्छा खासा था, लेकिन वहाँ पर इमरजेंसी जब आप जाते हो तो आपके हेल्थ के हिसाब से आप कितना सीरियस हो, कितनी आपको तकलीफ़ है, उस हिसाब से आपको वो पेशेंट लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड को उन्होंने तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद लिया, क्योंकि उसका पेन फिर भी बर्दाश्त हो रहा था, लेकिन उसकी निस्बत जो बहुत सीरियस होते हैं, जिनको जान का ख़तरा होता है, तो उनको पहले लेते हैं। तो ये चीज़ें हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हम बोले इसको लगा है, इसकी फ्रैक्चर हुआ है, इसको दर्द हो रहा है, फिर भी नहीं देख रहे, फिर भी नहीं उनको चेक करें, तो हमें थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन फिर अगर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर फिर भी ओवरऑल, लेकिन मैं वाकई दिल से कहूँगी कि ओवरऑल इट्स रियली गुड कंट्री टू लिव, इट्स रियली गुड कंट्री। कनाडा एक बहुत अच्छी कंट्री है कि जहाँ पर रहा जा सकता है। यहाँ पर टैक्सेस करते हैं, ईआई करता है, आपका इंश्योरेंस जो आप अगर बगैर जॉब के हो जाते हो तो वो करता है, आपका सीनियर करता है, ये सब चीज़ें करती हैं, नो डाउट। लेकिन जो सीपीपी आपका करता है, तो जब आप वो गवर्नमेंट नहीं लेती है, वो गवर्नमेंट नहीं अपने पास रखती है, अपने लिए, अपनी पर्सनल चीज़ के लिए वो यूज़ नहीं करती। लेकिन वो जब आप बूढ़े हो जाते हो, जब आप रिटायर हो जाते हो, तो सब का सब पैसा गवर्नमेंट खुद का पैसा भी मिला के वो आपको करती है, आपको वापस देती है कि आप सही तरह घर में रह सको, आपको अपना घर हो, आपके रहने के लिए आपके पास छत हो, अच्छा पानी हो, आपका जो है वो आने जाने के लिए आपको खर्चा हो, आपका खाने पीने का खर्चा आपको दें, अगर आपको बच्चे दें या नहीं दें, लेकिन गवर्नमेंट आपको देती है, जो कि आपका फंड में से काटा जाता है। और दूसरा, तो आपको जो ईआई करती है, अगर आपने यहाँ पर 1 साल काम किया है और आपकी जॉब चली गई है, तो आप गवर्नमेंट को अप्लाई करते हो कि भाई मेरे पास जॉब नहीं है, तो आपके जो सब, अगर फॉर एग्जांपल आपके 3,000 आपका पे है महीने की, तो उसका 60 to 70% आपको देती है, ताकि आप आराम से सर्वाइव कर सको, आपका घर का खर्चा चल सके, आप परेशान नहीं हो जाओ, तो वो भी आपको वापस मिलते हैं पैसे। अभी हम बात करते हैं टैक्सेस की। अभी देखिए, हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में लोग टैक्सेस भरते हैं? नहीं भरते। जिनकी जॉब है उससे तो फिर भी गवर्नमेंट ऑटोमेटिक उनका टैक्स कट जाते हैं, लेकिन जो बिज़नेस वाले हैं वो टैक्स देते हैं? नहीं देते। तो उनको कौन सी सहूलियत है? कुछ भी सहूलियत नहीं है उनको। रोड्स टूटे हुए हैं, कोई बेसिक जो पानी है उसकी सहूलियत नहीं है, पानी नहीं आ रहा है घरों में सही तरह। आप तो सब कुछ बेहतर जानते हैं कि आपको पाकिस्तान में, इंडिया में रह रहे हैं, तो आपकी कितनी सहूलियत हैं, कितनी सहूलत आपको मिलती है। अगर आप जो टैक्स भर रहे हो या नहीं भर रहे हो, जो भर रहा है उसको भी नहीं मिल रही है, जो जॉब पे हैं, जो इनकी जॉब के ज़रिए टैक्सेस कट रहे हैं, तो उनको भी सहूलत कोई भी नहीं है, कोई भी बेनिफिट नहीं है उसको। यहाँ कनाडा में देखें कि यहाँ की सड़कें आप देखें, यहाँ के आप फुटपाथ देखें, यहाँ आपके ये देखें, हर तरफ ग्रीनरी है। फुटपाथ आपको, यानी कि इवन स्नो होती है तो आपके फुटपाथ साफ़ होते हैं कि आप घर नहीं जाए, फुटपाथ आपके साफ़ होते हैं, आपकी सड़कें आपको बनी हुई मिलती हैं, और आपकी लाइफ स्टाइल यहाँ का देखें। तो यहाँ पर हेल्थ फ्री है, फिर बच्चों की स्कूल फ्री है, यहाँ पर इंसानियत की कदर है, यहाँ पर इंसान की कदर है, इवन यहाँ पर जानवरों की कदर की जाती है। फिर सबसे बड़ी बात बता दूँ कि जो होमलेस है, जो नहीं कमा रहे, जो होमलेस हैं, जिनका घर नहीं है, यहाँ पर क्यों होमलेस है, ये मैं एक और वीडियो बनाऊंगी कि होमलेस जो है वो किस वजह से हैं। कितने हज़ारों लोग हैं जो उनका घर नहीं है, तो वो क्यों हैं। लेकिन बहरहाल, तो फिर उनके लिए खाने पीने के नहीं है, तो वो भी भूखे नहीं मर रहे हैं। उनके लिए भी जगह देखें कि फ्री फूड के जो रखे हुए, फ्री खाना रखा हुआ है, और फिर उनके लिए सोने के लिए जो है वो फ्री में जगह हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ठंड होती है, तो फिर वो बाहर सोएं तो वो तो मर जाएंगे, तो उनके लिए अंदर हीटिंग वाली जगहें हैं, वहाँ जाकर सोते हैं।
तो बेसिक वहाँ यहाँ पर इंसानों की कदर की जाती है। अगर मैं सोचूं कि मैं 2000 कमा रही हूँ, उसमें से मेरे 400-500 कट रहे हैं, अफ़सोस होता है, सब काफ़ी लोगों को अफ़सोस होता है। काफ़ी लोग तो बोलते हैं ये क्या बात हुई, इतने सारे पैसे कट रहे हैं। तो फिर हम उसकी निस्बत देखें कि कितनी सारी सहूलतें हैं जो हमें मिल रही हैं। अभी हम बात करेंगे कि महंगाई है। नो डाउट महंगाई तो हो गई है, क्योंकि मेरी वीडियो तो देखने वाले हर जगह पे हैं। अमेरिका से कुछ लोग जो जानने वाले हैं, कुछ व्यूअर्स हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई बहुत महंगाई हो गई है। तो फिर भाई जब पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है तो फिर कनाडा में भी तो महंगाई होगी ना, जहाँ पर पूरी दुनिया का सिस्टम ऐसा चल रहा है। स्पेशली कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा टोटली दुनिया ही चेंज हो गई है। तो ज़ाहिर बात है हर जगह जब महंगाई हो रही है, तो अगर महंगाई हो रही है तो यहाँ पर बाकी सहूलतें भी हैं, जॉब्स भी तो है ना लोगों के पास, कि चलो अफोर्ड तो कर सक रहे हैं ना। अभी यहाँ पर हम बात करेंगे कि लो इनकम में कुछ ऐसे भी लोग कनाडा में कहते हैं कि हमारी इनकम लो है। तो भाई आप अपनी स्किल सीखें, अपने आप को अपग्रेड करें। अभी मेरी एक जानने वाली है, हमारे पास एक लड़की काम करती थी दुकान पे। उसके हस्बैंड जो हैं वो पाकिस्तान से मेरे ख्याल में तकरीबन 2 साल पहले आए हैं। आपको यकीन करें कि वो 8 से 10,000 डॉलर महीने में कमाते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत वाले हैं, बहुत हार्ड वर्कर हैं। इतनी जल्दी वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं, इतनी मेहनत की है 2 साल के अंदर। आप अंदाज़ा करें 2 साल में मुझे बताएं, अगर कोई यहाँ आके 8 से 9,000 डॉलर कमा रहा है तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। उसने अपने आप को अपग्रेड किया, उसने स्किल्स सीखी, वो काम भी करता था और अपने आप को अपग्रेड भी करता जा रहा था। मैं अपने बच्चों की मिसाल दूं, हम लोग टोरंटो में थे ना, तो मेरे बच्चे स्कूल भी जाते थे, स्कूल में एडमिशन ली और फिर पार्ट टाइम वो किसी फूड की दुकान पे, जैसे KFC वगैरह होते हैं, इस तरह की कोई दुकान थी, वहाँ पर जॉब करते थे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई भी खामी नहीं है कि भाई आप और जॉब कर रहे हो। उन्होंने भी यहाँ आके, हम सब ने और जॉब की पहले। देखिए शुरू में अगर आप थोड़ा भी मेहनत करते हो, कोई और जॉब करते हो, उसमें कोई बुराई तो है ही नहीं। फिर आप अपने आप को अपग्रेड करो, अपग्रेड करें। जब अपग्रेड करेंगे अच्छी जॉब मिलेगी तो आपको फील नहीं होगा कि भाई मैं बैक होम इतनी अच्छी जॉब करता था, यहाँ पर मेरी अच्छी जॉब नहीं है। शुरू में आप अपने आप को अपग्रेड ज़रूर करें, ठीक है ना। लेकिन इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है, नो डाउट बढ़ रही है, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, बहुत ज़्यादा कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स निकलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, तो ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो जाए, ठीक है ना। तो उस पर गवर्नमेंट काफ़ी सारा काम कर रही है। ये जो सब बातें हमने डिस्कस की, तो देखिए टैक्सेस भी है, नो डाउट। फिर मैंने आपको इतने सारे बेनिफिट बताए। ज़ाहिर बात है जो मेरे यहाँ के देखने वाले वो तो समझेंगे कि भाई अच्छा, फिर मैंने फ्री स्कूल हैं, और फिर एक तो स्कूल बच्चों की फ्री, फिर ऊपर से गवर्नमेंट एक बच्चे को 400-500 देती है। ताकि तो हमने ये फिर एक तो टैक्सेस की बात की, फिर इन्फ्लेमेशन की बात की। तो इन्फ्लेमेशन तो हर जगह पे है, दुनिया में हर जगह पे है। क्या हमारे पाकिस्तान इंडिया में इन्फ्लेमेशन नहीं है? तो अगर आप यहाँ पर प्लान कर रहे हो और आप बोले कि नहीं कनाडा में इन्फ्लेमेशन है, हम यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान में इंडिया में महंगाई नहीं बढ़ी है? वहाँ पर इन्फ्लेमेशन नहीं है? तो वहाँ पर भी तो है ना। तो लेकिन इससे अच्छा है कि यहाँ पर अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो है कनाडा में। मैं आपसे यकीन से कह सकती हूँ कि बैक होम के मुकाबले में यहाँ पर आप बहुत ही अच्छी लाइफ गुजारेंगे, ये मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ। और सबसे मेन बात कि कनाडा में 2023 में 2024 में क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये सबसे अच्छी बात है कि कनाडा जो है वो इमिग्रेंट को वेलकम करता है, बहुत सारे इमिग्रेंट्स को बुला रहे हैं। तो ये बहुत एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट है। अगर आप यहाँ पर एक दफ़ा इंटर हो गए, अगर आप लीगल तरीके से आ गए, तो फिर आप यकीन करें कि आपका यहाँ पर फ्यूचर संवर जाता है। ज़ाहिर बात है थोड़ी बहुत मुश्किलात हैं तो हर जगह पे इंसान अब मूव होंगे। क्या यूरोप में मुश्किलात नहीं है? क्या अमेरिका में लोग जाते हैं वहाँ पर मुश्किलात नहीं है? कि देखा जाए तो दूसरी दुनिया में हर जगह जो हालात चल रहे हैं कैसे हैं, लेकिन यहाँ पर कनाडा में क्योंकि उन लोगों को लोगों की ज़रूरत है, बंदों की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो वो वेलकम कर रहे हैं बहुत सारे इमिग्रेंट्स को, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा ये 23 और 24 है कि आप यहाँ का सोचें कनाडा का, या कनाडा मूव हो जाए।
कनाडा को अपना जो है वो परमानेंट घर बना है। आपको यहाँ से एक दफ़ा अगर आपने घर बना लिया तो आपको दुबई, सऊदी अरब या इन कंट्रीज़ की तरह यहाँ पर आपको कोई भी नहीं निकालेगा, फिर ये आपका अपना घर हो जाएगा, आपको यहाँ से कोई भी नहीं। फिर एक और अच्छी बात कि जिन लोगों को दुनिया घूमने का शौक़ है, तो यहाँ का जब आपने एक दफ़ा आपको पासपोर्ट मिल गया कनाडा का, तो आपको कितने ऐसे मुल्क हैं जिसकी आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पर आसानी से जा सकते हैं। स्पेशली अमेरिका तो आप मेरा बेटा अभी लास्ट महीने में गया था ड्राइव करके, अभी वापस गया है, तो अभी 7 बजे पहुँचेगा। फ़ोन मैसेज किया था कि मैं 8 बजे पहुँचूँगा, अभी 6 बजे हैं, तो 2 घंटे और भी हैं। तो ये तकरीबन 10 दिन पहले गया था टेक्सास और आज खैर से वापस आ रहा है। तो कोई आपको वो नहीं है, रोक टोक नहीं है, आप जब जाएं, आप हफ्ते जाएं, 15 दिन भी जाएं, यूएस जा सकते हैं। जिनको यूएस देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, क्योंकि आपके पास कनाडा का पासपोर्ट है। यहाँ पर एक और भी अच्छी बात है कि यहाँ पर जब आप आते हो तो स्टेटस बहुत जल्दी मिल जाता है। कुछ लोग अगर विज़िट वीज़ा पे आते हैं तो अगर अपने आप को उनको जॉब मिल जाती है यहाँ पर अच्छा अगर ये अपना बिज़नेस करना शुरू कर देते हैं, तो उनका पीआर वहाँ से लेकर उनका पीआर का जो टाइम है वो जल्दी होता है। ऐसा नहीं कि अमेरिका की तरह 15-15 साल 20-20 साल लग जाते हैं, अता पता ही नहीं है, तब तक आप वहाँ पर कोई आपका स्टेटस ही नहीं है। और मेरे हिसाब से तो कनाडा इज़ बेटर कंट्री, इज़ अ गुड कंट्री टू लिव, इज़ गुड कंट्री टू थिंक अबाउट कि हम लोग यहाँ मूव हो जाएं। और बाकी तो मैंने सब चीज़ें आपको बताई है, टैक्स के बारे में भी नो डाउट टैक्स हैं, और इन्फ्लेमेशन के बारे में भी मैंने जो चीज़ें बताई हैं कि भाई है सब जो सच्चाइयाँ हैं यहाँ की, वो मैंने आपको बता दी हैं। तो लेकिन स्टिल मैं कहूँगी कि ये वाकई एक अच्छी कंट्री है, सोचना चाहिए यहाँ पर रहने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कि जो प्लान कर रहे हैं यहाँ कर आने का, तो उनको शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।